Vishwasai. Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, साईराम। ओम श्री साईराम गुरुदेव दत्त। शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ शिरडी साई विश्व साई। स्पेशल आई से बिकॉज टुडे ऑनवर्ड्स वी आर नाउ starting to celebrate our love for Mother Earth as per the inspirations intensely coming from Vishwayogi Vishwamji Maharaj. He has been encouraging us to develop a vaster vision, not confining ourselves to concerns of our nation alone, our community alone, or for that matter, concerns not confining ourselves to a particular religion to which we belong, but to humanity at large. And that is where love for Mother Earth becomes even more significant. So when I say we are going to be celebrating our love for Mother Earth, we are announcing a weekly quiz dedicated to love for Mother Earth. And the question is, in our scriptures, the reference of Mother Earth is given as wife of who? So the question is, Mother Earth is referred to as whose wife in Sanatan scriptures? So with that question, we begin today's program with this particular pious visual treat from Sai Mandir Baldwin. सतयोः अर्घमुदर्पयामि मुखे आचमनीयमुदर्पयामि दादकस्नानं आमोद्गाम्योः महेरणागैरक्षते यावश्चपदमानदः तस्य भाजयदेनः उषधीयमानदः तस्मान्नमो यशक्त्याय जन्मदा आपूजनगजानः सर्वदा समुद्र आयनाद्यवदाभ्यो नमः दादक स्नानं समर्पयामि ओम भद्रं कर्णे भद्रयामदेवाः भद्रं वस्के माक्षपदेजत्राः श्रेयरङ्गैः सष्टवाहं सर्वभिः विजयम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्चा हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्ददातुः ॐ गं विद्यां देहे. As we prepare ourselves for celebrating festivals, we also are reminded of the origin of these festivals. So when we talk about Shivratri, how intensely our devotion for Lord Shiva is related to leading a life which yields a sense of liberation at each and every step, and how this unpolluted love. So today we look back and we share glimpses of Shivratri celebration at Sai Mandir from last year. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Bhanashaya Mahadevaya Dhimihi Ugraya Cha Ugranshaya Sarvaya Shashimulini Mrityunjaya Rudraya Nilakantaya Sambhave Amriteshaya Sarvaya Mahadevaya Te Namaha. Provider and remover of all troubles, gods of all gods, I bow to you. Angered and killer of anger, with a bow and a moon on his head. Know that destroyer of misery. Blue nectar and from all sounds emanate. Gives nectar to every one of life. Gods of all gods, I bow to you. Very good, very good. We're not really human beings do Kalyanam for Lord Shiva. But what we are doing is just an attempt to do the best we can do. Om Sri Guru Namaha Hare Om Tribhuvana Palita
जगज्जननी श्री राजराजेश्वरी सहित देवता कल्याणम अहं करिष्ये प्रत्यञ्जोयन्द विगतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबुधा विनेशतु silver ignition from Parvati's epic class. మధుపర్కాలు ఇచ్చినటువంటి సమయంలో అదిగో పట్టు మధుపర్క ద్రవ్యాలు శిరస్సును దాల్చాడు ఆయన. కొట్టండి కొట్టండి. పార్వతీ పదలే హర హర మహాదేవ. जगदम्ब विश्वपालिनी माता की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. Said this wedding was performed many yugas ago by Brahma himself, and last time he told me all the guests are Vishnu and all the Mukkoti Devatas. So we are all Mukkoti Devatas sitting here. Today is a very auspicious day, Mahasivaratri, and on this day doing Sivaparvati Kalyanam, I consider that is more auspicious. So we have a lot of devotees came to attend this important divine wedding between Parvati and Shiva, and we are also साईश्वराय नमः. साईश्वराय नमः. ओम नमः शिवाय 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 नमः. मृत्युंजयाय नमः. मृत्युंजयाय नमः. त्रयंबकाय नमः. लिंगेश्वराय नमः.
Namah Shivaya Namaho. Om Namah Shivaya Namaho. Om Namah Shivaya Namaho. Om Namah Shivaya Namaho. Many times we assume that we know, whereas when the time of actually applying that knowledge comes, that knowledge slips away from us. In order to be able to apply the knowledge and have the ability to think correctly at the correct time when we really need that knowledge, that ability comes from grace, as we believe it comes from blessings. And that's why the tradition of seeking blessings from elders, from mother, father has been there. And also grace and blessings of Guru definitely helps us in keeping our alignment with the truth of our being, so that we have the pious uplifting and those thoughts which are like our friends. So the friendship for everybody is also, that awareness is also like a gift of grace. And in order to invoke this grace, we sit with Vishwayogi Vishwamji Maharaj. And these words, even if we hear them again and again, there is something refreshing about them. The whole earth, each and every country, every organ, head is United States of America, brain, and heart is India. Heart beating, lub-dub, 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 no lub-dub. Love peace, love peace, love peace, love peace. The Mother Earth, the heart of the Mother Earth, Mother India is asking to give love, peace, love, peace, love, peace. Head is America. Why I compared America to head? The journalist asked me. In India also so many intellectuals asked me, Swami, you compared the United States of America to the head, and you are going every year and you are spending 6 months there. We think that you like and love America very much. Yes, it is correct. I like and love America very much. Equal to India and every country also. The whole world, the earth, head is America. Why I compare? Listen to me carefully. I told so many times. The intellectuals of each and every country, the intellectual persons, they want to come and live in America. They came and they settled here. Unitedly, they are working for the progress of United States of America. That's why America has become the greatest and famous country in the world. The united with the united work of the intellectuals of the world. It is a mini world. It is not a country. It is the mini world. If anything happens in USA, it reflects the world and it shakes the world. That's why we have to make USA peaceful. Unless we make USA peaceful, peace is a dream. So if you want to get peace in the world, first of all, you have to make the head, America, peaceful, powerful, and strong enough. Physical strength, mental strength, financial strength, social strength, and spiritual strength. 5 strengths are very essential. I appeal to you. I ask the Indians who are living here in the United States of America. India is your motherland, and America is your adopted motherland. Not stepmother, adopted mother. So you have to love and like both the countries and the world also. You have to salute the Indian national flag and American national flag. You have to obey the rules and regulations of the Indian Constitution and American Constitution. You have to respect each and every department of the government, federal or state. You have to obey the federal law and state law. You have to work, you have to move according to the rules and regulations of the federal government and state government. And the most important thing you have to do,
is you have to mix and match your heart and brain with the hearts and minds of the people, Americans and all people living here, and you have to make America the strongest and greatest country, away from all crises, economical crisis, financial crisis, social crisis, every crisis. Above all these crises, you have to make America the strongest and greatest country, and make India and America coming closer and closer to do something good for the world. Shirdi Sai Vishwa Sai. Shirdi Baba's Leelas and his inspirations and his life becomes available in the form of Sai Charitra also for us. And today we are sharing this particular reference from the first chapter, just with the idea of meditating on these words. You are familiar with the reference of Baba और हिंदी भाषा में कहें तो वो जो पीसा करते थे आटा जो पीसने के लिए महिलाओं ने शिरडी की उनकी मदद की, तो वो जो चक्की पीसने का क्रम पूरे जीवन भर बाबा के साथ रहा, उसका मतलब क्या था साई चरित्र में बताता है। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के दो पाटों में ऊपर का पाट भक्ति और नीचे का कर्म था। ऊपर का पाट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वो था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान और आत्मानुभूति संभव नहीं है। इस पंक्ति को फिर से सुने। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, तब तक ज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। श्रद्धा और सबूरी का आश्रय लेकर बाबा के चरणों में आश्रय लेने की प्रार्थना के साथ हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ अहंकार से मुक्ति मिल जाती है, और अहंकार से मुक्त होने के बाद ही वो अनुभूति जिसे आत्मानुभूति कहते हैं वो संभव है। ये बात हम तक पहुँचती है साई चरित्र के पहले अध्याय से ही। आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में और मिलते हैं इस कलाकार से जो भारत के हैं या पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के। वर्तमान संदर्भों में उन्हें पाकिस्तान का कलाकार कहा जाएगा। आरिफ लोहार संगीत के साथ साथ पूरी मानवता के लिए एक निर्मल विशुद्ध प्रेम का संदेश भी लेकर कई कई देशों में जाते हैं। पिछले समय जब वो न्यूयॉर्क में पधारे, एशिया सोसाइटी में उनका कार्यक्रम था, उन दिनों उनसे जो मुलाकात हुई तो ऐसा लगा जो भाव बाबा का रहा सभी समुदायों को आपस में प्रेम की सीख देने का, वो सीख कहीं ना कहीं ध्वनित होती है न केवल आरिफ लोहार जी के संगीत में बल्कि उनके चिंतन में भी। ओ जुगनी धांगे बग्गे जुगनी ओदे मोती फब्बे जिन्नू सट इश्क दी लगे ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आवे नाम सजण दा लैंदी आ जड़ी बैठ के कलमा कहंदी आ। क्या बात है। एक ये अंदाज है। सो मैं समझता हूं कि हर अंदाज में उसे प्योरीफाई भी आप पेश कर सकते हैं, जो भी है, जो एक कुदरती एनवायरनमेंट से निकलती है चीज़, वो आपके पास मौजूद होती है, लेकिन उसमें थोड़ा फ्यूजन कर लेना और इंटरनेशनली मार्केट में आप जाओ और उससे खेलें, मज़ा लें, लोगों को भी बताएं हमारा कल्चर क्या है, सो लोग भी इंजॉय करें। तो आरिफ जी की बात को मैं थोड़ा सा रोकते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतना उदारता से अपनी पूंजी जो हुनर की है, कला की है, उसको बांटने वाले कलाकार बहुत कम होते हैं, और
वो खुद नंबर 1 हैं इस बात से भी उस का प्रमाण हम तक मिलता है, क्योंकि वो सबके अंदर नंबर 1 देख सकते हैं और सबको वो कहीं ना कहीं नंबर 1 है, ये अपने संगीत से कहीं गुदगुदाते हैं अंदर इस तरह से। और एक ऐसी मस्ती जब इनके साथ वो चिमटा आपने अगर पहले कभी ना देखा हो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसमें से इस तरह की ध्वनि आ सकती है जिसमें हमें मस्त कर देने वाली बात पैदा हो सकती है। ये बहुत ही खूब बात है। और बहुत खूब बात ये भी है कि आप शायद ऐसे पहले कलाकार हैं जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से बाहर कई मुल्कों में आपने परफॉर्म किया, यूके, यूएई, अमेरिका, पूरी दुनिया में, और साथ में आप नॉर्थ कोरिया में शायद परफॉर्म करने वाले एकमात्र उस तरफ के आर्टिस्ट रहे होंगे। और उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट्स था, उसमें अमेरिकन एक बैंड था वो भी गया हुआ था, और वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे मौजूद थे, और मैं भी गया हुआ था अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो वहाँ पे एक नई बात थी कि बिल्कुल के देखें, ये एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक कल्चरली अपना कल्चर बयान करके तो एक ब्रिज बनाते हैं, लोग उससे इंस्पायर होते हैं, उससे देखकर महसूस करते हैं कि दुनिया में जहाँ कोई है उसकी अपनी आवाज़ है। सो ये इससे बेहतर ब्रिज मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बनता है। आर्ट के ज़रिए आपको पता चलता है, कला के ज़रिए आपको पता चलता है कि यहाँ पे आज देखें, सदियों मिट जाने वाली चीज़ भी अगर आप मिट्टी खोदते हैं तो उसमें से सबसे पहले आपको क्या मिलता है? आर्ट। जी। आपको कभी भी क्या बात, मट्टी में से जब आप खोदते हैं तो नकूश किसके मिलेंगे आपको? सिर्फ आर्ट के। सो इसलिए आर्ट में मैं समझता हूँ कि आर्ट में ये खुदादाद चीज़ है, ये इन्वायरमेंट से निकलती है, ये कल्चर से पैदा होती है। ये आप किस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर से आपको मिलता है ये सारा कुछ। सो वो मिट्टी में सदियों पुरानी चीज़, कई 100 साल पहले ख़त्म हो जाने वाली चीज़, उसमें से आपको कुछ मूर्तियाँ बनी मिल जाएंगी, कुछ आपको डिज़ाइन किए हुए फूल मिल जाएंगे, कुछ आपको कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये आर्ट है जो आज तक कायम जिंदा है। आर्ट के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया, कंसीव किया होगा, तो ये भी तो एक कुदरती आर्ट है। ये भी तो देखें कि कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी दुनिया है, कितना उससे रंग से भरा हुआ है, कितनी मोहब्बत है उसमें। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि दुनिया में हम लोग कितने कंजूस हैं कि हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए, लेकिन परिंदे को प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। परिंदा आज़ाद है, उसे किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। वो आसानी से अपना प्यार का, मोहब्बत का मैसेज लेकर कहीं ना कहीं प्रवास कर रहा होता है। तो उसकी क्या है? परवाज़। जो मोहब्बत रखता है, जो परिंदा है, परवाज़ करने वाला। मैं कहा करता हूँ कि आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने। क्या बात? आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने, नाव रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते नाव भुखे मर देने। उन्होंने रिज़्क को ज़ख़ीरा भी नहीं किया और वो एक दिन के लिए खाना खाने के लिए उड़ते हैं, खाना खा करके कहीं से आ जाते हैं। क्या बात? उन्होंने ज़ख़ीरा कुछ भी नहीं किया। तो इंसान है, वो सारी ज़िंदगी ज़ख़ीरा भी करता है और भूख से भी डरता है कि मेरे बच्चे भी भूख से ना मर जाएं। तो देने वाला तो मेरा खालिक है, वो कहीं ना कहीं बैठे हुए, अगर पत्थर में बैठे हुए कीड़े को वो रिज़्क दे सकता है, तो मैं नहीं समझ सकता कि कहीं भी इंसान जो है। तो इसलिए मैं, आप बार बार वो कह रहे, मेरे लिए हर बंदा नंबर 1 इसलिए है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी इनफरादियत दे करके ऐसा इंसान दोबारा नहीं बना के भेजा। वो इंसान से इंसान ज़रूर पैदा होता है। ये भी उसी का एक ऐसा खेल है जिसमें कि आप अपने बुज़ुर्ग को याद करते हैं, रोते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान को माँ बाप, फादर मॉम, आपको यानी ये माँ बाप जो है हमेशा याद आते हैं। आप कितने बड़े हैं, कितनी उम्र ले जाते हैं, कितनी उम्र बढ़ जाती है इंसान की, 50-60 साल का होता है, लेकिन उसका बच्चा वैसे ही मासूम होता है। वो अपनी माँ को वैसे ही याद करता है और अपने बाप को वैसे ही याद करके रोता है जैसे एक दिन का बच्चा रोता है।
देख रहे हैं शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम में विशेष बात यह है कि वी हैव स्टार्टेड टू सेलिब्रेट आवर लव फॉर मदर अर्थ विद दिस न्यू साई अर्थ क्विज. And today in the Sai Earth quiz number 1, the question is, in Sanatan scriptures, Mother Earth is referred to as whose wife? So you have to write the name of Mother Earth's husband as is given in Sanatan scriptures. और हिंदू धर्म में जब आप सुबह उठकर धरती माँ को प्रणाम करते हैं तो जो मंत्र आप उच्चारित करें वो मंत्र भी जो लिखकर हमें भेजेंगे उन्हें भी अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाएगा. और पुरस्कार की घोषणा करने के पहले आवश्यक ये है कि आपके जवाब हम तक आएँ. और जवाब भेजने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं द ईमेल shirdisai@gmail.com और आप टेक्स्ट कर सकते हैं 9175737775 पर. शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में अगले सप्ताह आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे. अशोक व्यास को अनुमति दें. साई राम. नमस्कार. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ए जवानी चार दिहाड़े भी खुशियां नाल हंडाइए, यानी कि खुशी से रहना चाहिए. ए जवानी चार दिहाड़े भी खुशियां नाल हंडाइए, ओ जिंदगी दा कोई मान नहीं, मत पल के ही मर जाइए. सप्पां दे पुत्र यार नहीं बनदे, चुलियां दुध पियाइए. ओ गई जवानी फेर नहीं आउणी, लख खुराकां खाइए. ओ छड्ड लुहारा गाउण दा खैड़ा ते सन्नी थोड़ा वाइए. ओ ले जांदा ई जुगनी, पीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ नाम सजण दा. ओ नाम सजण दा लैंदी आ. अल्लाह बिस्मिल्ला मेरी जुगनी, वाह सज्जणा तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आ जुगनी. ओए recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu.